Let's take a walk around this Round Studios. Ribbon of water unfurls west into the sunset. The walls are making some sounds. Endless changing color. The tidal lift and fall of river to the south carrying the tang of hopes on the breeze sometime. I don't know what place is it. I see a lot of housing in Brentford, but most of them are lying vacant. There are new buildings which have come up but not yet occupied. I think the housing sector of UK is up to something. चलिए थोड़ा explore करें. I don't know what is it, but it is called the Brentford Project. So actually this is a boat yard, a working boat yard with machinery, deep water pontoons and access ramps, and this is where the boat work happens. So this must be an interesting place. A lot of boat related engineering must be happening in this area. Looks nice, has some moss on its roof. But yes, boat yards are special, and having worked in one in the naval dockyards of the Indian Navy, I can tell you that people who make boats or maintain boats or create boats are really special and amazing. These towns are really wonderful, very quiet, not much of an activity happening in and around. I think once you have the ability to, or rather, I think I should say the ability to retire, maybe these are the kind of places that you should come to. Take long, peaceful walks, enjoy the absolute wonderful clean air and weather, and wait for the sunset to happen. I see one cathedral somewhere behind this building. Let us see if we can capture something. And yes, I mentioned the right thing. So here is the funeral directors and memorial stonemasons. Anyway, I don't need their services right now. Thank you. I see, I think it's a St. Paul's Cathedral here. There's a nice shelter if you are stuck here because of the rain. Probably आप यहाँ पे आके shelter ले सकते हो. It can give and provide a real good cover. Yes, so this is St. Paul's Church and the parish center. Let me see if I can just cross and at least be in front of the church. But where is the pedestrian crossing? You know, one thing which is very important in these kind of places is that you just can't cross the road at your will, and you should never, because the drivers here are very, very particular. They look after the interests of the pedestrians, but you should not put them under undue stress and struggle. आपको जब सड़क क्रॉस करनी है, आप बहुत ध्यान से, बहुत वेट करके, बड़े इत्मीनान से जाइए. कोई जल्दी नहीं है. क्वाइटली मैंने सड़क पार कर ली. साइकिलें यहाँ पे लोग बहुत चलाते हैं, और जैसा कि मैंने कहा आपको कि अपने डॉग्स को बहुत अच्छी तरह मैनेज करते हैं लोग यहाँ पे. ये बहुत ज़रूरी है कि आप अगर अपने पेट को सड़क पे घुमा रहे हैं तो आप उनका थोड़ा सा ध्यान भी रखिए, और उन लोगों का भी ध्यान रखिए जो
आपके बाद उस सड़क को इस्तेमाल करेंगे। सो ये है सेंट पॉल्स चर्च and its stone was laid by Her Royal Highness the Princess Mary Adelaide, Duchess of Teck, on 31st of December 1867. Now if you just take your imagination back to 1867, you can imagine how this place would have actually looked during that time and age. And this particular cathedral came up in 1867. Wonderful property. लंदन का जो हीथ्रो एयरपोर्ट है वो बहुत ही एक बिज़ी एयरपोर्ट है, क्योंकि हर 1 मिनट के अंदर एक बड़ा जहाज़ यहाँ पे लैंड हो रहा है। मैंने हर तरीके का जहाज़ देख लिया पिछले 5 मिनट में। A380, तरह तरह के बोइंग, मैसिव, बड़े छोटे हर तरीके के जहाज़ ऊपर नीचे हो रहे हैं यहाँ पे। और मैं इस समय इस सेंट पॉल्स चर्च और जो इसके बगल में एक छोटा सा स्पायर कैफ़े बना हुआ है, वहाँ पे बैठा हूँ। इस जगह को देख के मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे कुछ 10-15 मिनट ऐसे ही बैठूँ और यहाँ के माहौल को पास से देखूं। पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं। ज़्यादा बिल्कुल ठंड बिल्कुल नहीं है, मौसम बहुत ही प्लेजेंट है और लोग अपने वीकेंड को एंजॉय कर रहे हैं। एक अजीब सी शांति है यहाँ पे, जो कि आपको भीड़ भाड़ और इन चीज़ों से जब दूर हो जाते हैं आप, तो ये जो शांति है इसको एक तरह से बोलिए कि समझना और इस शांति के अंदर खुद भी घुल जाना कई बार आसान नहीं होता, क्योंकि हमको शायद बहुत ज़्यादा शोर शराबे की आदत है, या बोलिए कि आसपास काफ़ी जनता अगर घूमती फिरती दिखाई ना दे या ट्रैफिक ना हो तो थोड़ा सा हमको अजीब लगता है। यहाँ पे ओकेजनली 5-10 मिनट के अंदर 3 या 4 लोग दिखाई देते हैं, कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, जहाज़ों की भरमार है, जहाज़ बहुत आ रहे हैं जा रहे हैं। हो सकता है कि इन शहरों के अपने चैलेंजेस हों, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी में उनके अपने इश्यूज़ हों जिससे कि वो जूझ रहे होंगे। हम अपने इश्यूज़ के साथ जूझते हैं, लेकिन सोचने और समझने वाली बात जो शायद मतलब हम सभी को सोचना चाहिए उसके बारे में कि आखिर हम अपनी ज़िंदगी के साथ चाहते क्या हैं। हम किस किस चीज़ को एक्चुअली सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, हम इश्यूज़ को कैसे देखते हैं और हम उन इश्यूज़ को के आगे के जो स्टेप्स हैं उनके लिए हम क्या सोचते हैं। ऐसी जगहों पे आने के बाद मन में उस तरीके के विचार बहुत आते हैं। अगर आप देखें तो हर एक व्यक्ति के अंदर एक सॉल्यूशन को ढूंढने की क्षमता होती है। कुछ लोग उस सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए एक्शन कर देते हैं, कुछ लोग उन सॉल्यूशंस के लिए एक्टिवेशन कर लेते हैं, वो किसी को और को एक्टिवेट कर देते हैं, वो आदमी उनके लिए सॉल्यूशन ढूंढ के दे देता है। और कुछ हैं जो सॉल्यूशन को देखते हैं लेकिन उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते। तो जब भी आपके आसपास आप कुछ समाज में कुछ चीज़ें होते हुए देखें, अपने आसपास अपने परिवारों में कुछ चीज़ें होते हुए देखें, अगर आप उन चीज़ों का एक अच्छा सा सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें और ऐसा सॉल्यूशन निकालें जिसमें ये मत सोचिए कि प्रॉफिट सिर्फ मेरा ही होना चाहिए या मेरा ही हमेशा भला हो, लेकिन अगर आप कोशिश करें कि उस सॉल्यूशन से मामला सुलझ जाए, जल्दी से सुलझ जाए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वरना अगर आप देखें तो जैसे मैंने कहा कि हम अपने देश में जब रहते हैं वहाँ की हम भीड़ भाड़ को देखते हैं, हम देखते हैं जब हम लोगों से बात करते हैं तो उन लोगों की क्या क्या परेशानियाँ हैं, वो किस तरीके के प्रॉब्लम्स का का सामना कर रहे हैं। कई जगह पे उनको किसी को जॉब की इशू है, किसी को कोई हेल्थ का प्रॉब्लम है, बहुत तरह के इश्यूज़ होते हैं। तो उन चीज़ों से कैसे बचा जाए, या अगर बचने का चांस ना भी हो तो किस तरीके से
उन उन प्रॉब्लम्स से हम ऊपर उभर के निकलें। इसी प्रकार यहाँ के लोग भी उन्हीं प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे होंगे। तो इंसान तो देखिए हर जगह सेम ही है, वही 2 हाथ हैं, वही 2 पैर हैं, वही 2 आँख हैं, वही 2 कान हैं। लेकिन अगर लड़ाई झगड़े से और उस तरीके के वातावरण से बचा जा सके, और ख़ासकर कि जो व्यक्ति समाज को चलाने की कोशिश करते हैं, जो चलाते हैं, जिस प्रकार से जो लीडरशिप रोल्स में होते हैं, अगर वो इन चीज़ों को समझें और इंसान को उन चीज़ों से दूर करके, लड़ाई झगड़े के वातावरण से दूर करके, अगर उनको किसी और रास्ते की तरफ लेके जाएं जहाँ पे कि वो कुछ मेहनत कर सकें, काम कर सकें, या जो भी है, चैलेंज तो उस रास्ते में भी है, लड़ाई झगड़े के रास्ते में भी, और चैलेंज दूसरे रास्ते में भी। अब ये सोचना है कि सॉल्यूशन कहाँ पे ईजी है, कहाँ पे, क्या लड़ाई झगड़े के रास्ते में सॉल्यूशन आसान है कि दूसरे रास्ते में सॉल्यूशन आसान है। तो उसके ऊपर थोड़ा अगर हम लोग सभी सोचें, और सिर्फ ये ना सोचें कि जो कुछ है वो सिर्फ मेरी भलाई के लिए होना चाहिए, अगर हम इस एटीट्यूड से ऊपर आ जाएंगे तो हम शायद ऐसे स्ट्रक्चर्स को बना पाएंगे जो सदियों तक खड़े रहेंगे। और देखिए, जिसका भी नाम यहाँ पे लगा हुआ है, जिन्होंने भी, जो डचेस ऑफ टेक थी, प्रिंसेस मैरी एडिलेड, उन्होंने 1867 में इस स्ट्रक्चर को इनॉग्रेट किया था। उसके बाद ये स्ट्रक्चर बना होगा, बनने के बाद ये आज क्लोज टू 200 साल के आसपास हो गए हैं। इसको करीब 170वें साल में चल रहा है, या 165वें साल में ये चल रहा है। ये खड़ा हुआ है, डचेस तो निकल गई, लेकिन ये स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। और शायद ये स्ट्रक्चर टेस्टिमनी है कि ये जगह कैसी रही होगी, और आज इस जगह में क्या क्या बदलाव आ गए, लेकिन ये यहीं पे खड़ा हुआ है। ये कहीं टस से मस नहीं हुआ, कहीं गया नहीं, ना ये गिरा। ये आज भी समय को बांध के खड़ा हुआ है। इसके ऊपर से जाता हुआ हर जहाज़ शायद इसको देखता होगा, या ये उन जहाज़ों की आवाज़ों को इसने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन आज ये फील करता होगा उनकी वाइब्रेशंस को। पर सोचने वाली बात यह है कि हम क्या केवल अपने नाम और अपने स्ट्रक्चर्स बनवाने की जिद में हम समाज में जो इंसान हैं, उन इंसानों का क्या हम भला कर पा रहे हैं? क्या हम उनको सही रास्ता दिखा रहे हैं, या कि हम उनको उसी एक लकीर के ऊपर चलाए जा रहे हैं जहाँ से कि हम कभी नहीं चाहते कि वो उससे ऊपर उठ सके, या वो उस काम को, जो भी काम वो कर सकता है, उसको इज्जत से करे और अपना जीवन यापन कर सके। सोचिए, ये कुछ विचार आए इस जगह पे बैठ के, इस सब माहौल को देखते हुए। तो चलिए दोस्तों, देखिए लंदन के बढ़िया नीले आसमान, जिसमें बादल हैं, हवाई जहाज़ हैं, और हर तरीके का पक्षी भी घूम रहा है। इसके साथ बैठ के मैं आज थोड़ा सोच विचार कर रहा हूँ। सुबह उठा, बहुत सारे काम ख़त्म किए, जो अगले हफ्ते हमारे प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे लंदन में रहते हुए, जो हमारी मीटिंग्स हैं उन सब की तैयारी कंप्लीट करी, अपने प्रेजेंटेशंस को कंप्लीट किया, अपने नोट्स को कंप्लीट किया। मुझे किस किस व्यक्ति के साथ किस प्रकार की क्या बात करनी है, उसके अपने नोट्स क्रिएट किए। बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप अपनी तैयारी को परफेक्ट रखें तो आप जिस भी बिज़नेस लीडर के साथ आप मिलेंगे, या जिस भी व्यक्ति के साथ आप मिलेंगे, तो एक मीनिंगफुल बात हो पाएगी। क्योंकि ये मुलाकातें आसान नहीं होती। हम सब जोग्राफिकली डिस्प्लेस्ड हैं, दूर दूर के देशों में रहते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम एक अच्छा बिज़नेस एनवायरनमेंट बना सकें, एक अच्छा सामंजस्य बना सकें, और उसके सहारे हम अपने जो भी हमारे टारगेट्स हैं, या जो भी हमारी कंपनी के गोल्स हैं, या जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, उसको हम डिलीवर कर सकें। पर उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। और अगर हमारी तैयारी पूरी नहीं होगी, अगर हमने अपने मेरा मानना ऐसा है, मैं हमेशा अपने पॉइंट्स को अपनी डायरीज़ के अंदर या अपने नोट पैड्स के अंदर लिख के रखता हूँ, जिससे कि उस व्यक्ति का जिसके साथ की मेरे को बात करनी है, मैं उसके समय का एक सदुपयोग कर सकूं, और मेरे साथ जो भी उनकी बात हुई है वो एक मीनिंगफुल बात हो, जिसके ऊपर की एक डिलीवरेबल निकल के सामने आए। और उस डिलीवरेबल को जब हम डिलीवर करते हैं तो वो उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट हो, और मेरे लिए भी एक अचीवमेंट हो। और हम दोनों की अचीवमेंट के बीच में जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो होता है हमारे बिज़नेस का।
तो चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, कोई भी आपने अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी आपके ऊपर है उसको मीट करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि आप उसी समय पे जब लास्ट मिनट पे आप जब वहाँ पे पहुँचें तो तब आप सोच रहे हैं कि अब मेरे को यहाँ पे इस समय पे क्या करना है। तो आज की मेरी तैयारी जो थी वो मैंने कंप्लीट करी है। अब मैं वापस जाऊँगा। वापस जाने के बाद मैं फिर से करीब 2 या 3 घंटे और बैठ के कंटेम्पलेट करूँगा कि और क्या क्या बातचीत किस प्रकार से करनी है और किस तरह से आगे यहाँ से चीज़ों को लेके जाना है। और ये बहुत ही एक रिफ़्रेशिंग और इन्जॉयबल प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें आपका जो ब्रेन है वो एक्टिव है। आप कंटिन्यूसली प्रोग्रेस के बारे में, ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं और अच्छा लगता है जब जो पिक्चर आपके माइंड में है और जो पिक्चर आपने एक अलाइनमेंट अचीव की है अपने बिजनेस काउंटर पार्ट के साथ, अगर आप उस चीज़ को डिलीवर कर पाएँ तो सो गुड। आई हैव हैड अ वेरी फ्रूटफुल अर्ली मॉर्निंग। आई थिंक वट एवर jet lag or something which I should have got, I think I have overcome it very quickly. I didn't go for a run. I wanted to go for a run today morning, but I took it a little easy today morning because I had some pain in my right leg which I wanted to nurse. And hopefully tomorrow morning when I get up, I might just go for a run and then begin my day